with us. मेरे साथ जो मेरी टीम के थे रेवरेंड पास्टर अनुराज हमारे बीच में है And we have Brother Joyce Samuel with us. और हमारे जो भाई जॉयस सैमुअल हमारे बीच में है And we all also a dear friend, Pastor Santosh from Puri. हमारे मित्र पास्टर संतोष हमारे बीच में जो गुना से है I thank Smita for inviting us. It is a self-invitation. और मैं स्मिता के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ उसने मुझे आमंत्रित किया है And a big thank you for Pastor Sujit for accepting our invitation and allowing us to come and minister the word of God in this place. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मौके के लिए Hallelujah. A very short prayer and then we'll start. Father, in the name of Jesus, Lord, we thank you so much for this wonderful time and opportunity, Lord. As we minister the word, it's not me, but I pray, Spirit of God, release the fresh anointing and the breath of God. And I pray, Lord, put the words into my spirit. When I speak to me and speak to me. Let your words of wisdom, Lord, understanding, and the revelation flow to this place, Lord. And we have come today to declare freedom, to declare fearless in Jesus' name. Lord, we pray and we believe this service is going to be awesome. It's not me, but you will speak to me through me. In Jesus' name, we ask and pray. Amen. Hallelujah. ये इनविटेशन का नहीं तो ये चर्च सर्विस का एक नाम हम लगा दिए इन्विटेशन के आमंत्रित जो हमने किया था बैनर चर्च का नाम लिख दिया हमने fearless धर्मवाद fearless right? How many of you are in fear? कितने लोग हैं जो डर में हैं भय में हैं झूठ नहीं बोलना कुछ ना कुछ डर हमारे पीछे आ रहा है yes there is a fear which is following us जो डर हमारे पीछे है amen we are here to break the spirit of fear over your life and over this region आज यहाँ जो भय का आत्मा है यहाँ उसी जगह में उसको आज हम तोड़ने वाले नष्ट करने वाले hallelujah हालेलुया hallelujah हालेलुया you have to agree with me और आपको सहमति दर्शाना है उससे we did not come all this way for a time pass और हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आए हैं इतने दूर से we came here for a purpose और हम एक उद्देश्य लेके आए हैं we came here for a purpose हम एक उद्देश्य लेके आए yes हैं we want to break the fear in Pune क्योंकि आज पुणे में जो डर का आत्मा है उसको तोड़ना है नष्ट करना है we have to break it हमें तोड़ना है we have to break our fear which is inside us और जो डर हमारे अंदर है उसको तोड़ना है if you don't allow yourself to break that fear अगर अपनी सहमति नहीं दर्शाई for the rest of your life you stay in fear और पूरी जिंदगी आप उस डर में रहोगे right so let us break the spirit of fear over this place by the word of God और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जो डर का आत्मा है वो यहाँ से निकलने वाला है on your own you cannot do it आप अपने सामर्थ्य से कुछ करने नहीं सकते with the help of God we can break that fear परमेश्वर की मदद से हम उस आत्मा को नष्ट कर सकते हैं भगा सकते हैं so we'll start with the scripture portion is Isaiah 41:10 और यशायाह 44 का अध्याय 8वां वचन the main scripture portion for today is Isaiah 41:10 आज का जो वचन है यशायाह 40 वचन कोई पढ़ सकते हैं देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है वह अपने भुज बल से प्रभुता करेगा देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में 41 verse 10 Isaiah 41:10 मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाला रहूँगा हालेलुया हालेलुया इधर से शुरुआत मत डर fear not यहाँ से शुरुआत की है fear not for I am with you डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ fear not for I am with you डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ when God said fear not why should I fear
जब परमेश्वर कहते हैं कि डर मत, फिर हम क्यों डरते हैं? He said, I am with you. नहीं, वो कहते हैं मैं तुम्हारे संग हूँ, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ, Be not dismayed. आप डरना मत, I am thy God. मैं आपका परमेश्वर I हूँ, will strengthen thee. मैं आपको सामर्थ्य देने I वाला will हूँ, help thee. मैं आपको सहायता I will करूँगा, uphold thee. मैं आपके चिंता मत करो, With the righteous right hand. मैंने आपके दाहिने हाथ में आप सुरक्षित हो, Fear not. डर मत हो, Fear not. डर मत, Fear not. डर मत, Because it is a promise. ये परमेश्वर का वचन है कि डर मत। It is an instruction given from God that I should not fear. और परमेश्वर ने हमको मार दिया है, शब्द दिया है कि डर मत। So based on the scripture portion, ये परमेश्वर के वचन के ऊपर है, we'll see few instances where people fear. और हम ऐसे कुछ बातें देखे जहाँ लोग डर गए। Genesis chapter 3 verse 10. उत्पत्ती अध्याय 3 अध्याय 10 वचन समोर बघा, जसे मला तर पुढे वाचा। There are two types of fear. दो काइंड के जो भय रहते हैं, दो तरीके से, There are two types of fear. दो तरीका जो डर रहता है, One is fear of God एक परमेश्वर का भय and the other one is fear of the enemy. और जो शत्रु का डर। Fear of God जो परमेश्वर का डर है and fear of enemy. और जो शत्रु का डर है, So we'll see people who fear God and they have the fear of enemy. और हम देखते हैं जो परमेश्वर का जो उनके पास डर था और लोगों का जो डर था। Genesis chapter 3 verse 10. और उत्पत्ति अध्याय 3 अध्याय 10 वचन, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। And he said, I heard the voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. जब मैं बगीचे में था तो मेरी आवाज सुनी और आवाज सुन के मैं छुप गया क्योंकि मैं नग्न था। ये बातें कौन कर रहा था? Who was talking to ये his कौन कह रहा है? Adam was talking to his voice. आदम परमेश्वर से कह रहा है। Why was he afraid? वो क्यों डर गया था? Why he was afraid? वो क्यों डर गया था? Because he did against the word of God. उसने परमेश्वर के वचन के खिलाफ किया था God asked him not to eat the fruit. और परमेश्वर ने कहा था उस पेड़ का फल मत खाना, He ate the fruit. लेकिन उसने उस पेड़ का फल खाया। When he ate the fruit, और जब उसने वो फल खाया sin entered. और जब पाप उसके अंदर आया, When sin entered, जब पाप उसके अंदर आया, with sin there is fear entered. जब पाप आता है उससे डर आता है। So when God came to visit Adam and Eve, और जब परमेश्वर आदम उनके पास आया, when God called Adam, where are you? और जब परमेश्वर ने कहा आदम तू कहाँ है, He is hiding behind the tree. और वो जो आदम था वो पेड़ में छुप गया था पेड़ के पीछे। He said, I am afraid because I am naked. I want to hide myself. और आदम ने कहा कि मैं छुप गया क्योंकि मैं डर रहा हूँ, क्योंकि मैं नग्न हूँ। When there is sin, जब वो पाप रहता है there is fear inside us. और तब हमारे पास डर रहता है, And when there is fear, जब वो डर है we will become naked in the presence of God. और परमेश्वर के उपस्थिति में हम नग्न हो जाते हैं We can't come to Him boldly. और हम धैर्य से परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। The enemy will always do the same thing what Adam and Eve had experienced. और जो शैतान ने जो दुश्मन ने किया था आदम के उनके साथ, वही हमारे साथ वो करता है। God gave us the spirit of power. और परमेश्वर ने सामर्थ्य का आत्मा हमें दिया है। What did Adam do? और आदम ने क्या कहा? Adam gave the power to the hands of the enemy. और आदम ने जो उसको सामर्थ्य मिला था उस सामर्थ्य उसने अपने दुश्मन के हाथ में दिया। From then onward, he started fearing in this earth. उसी समय से उसी वक्त से उसमें डर आ गया। But we have to break that fear. और आज हमें उस डर को तोड़ना है, नष्ट करना है। Before he ate the fruit, जब उसने पहले वो फल खाने के he was bold enough to face God every evening. और उसमें धैर्य था और हमेशा शाम के टाइम में परमेश्वर से बातचीत करता था। He was not naked. और वो परमेश्वर के सामने वो नग्न नहीं था He had the righteous garment upon his life. और नीतिमान का वस्त्र उसने धारण किया था। There is no sin in it. उसके में पाप नहीं था, He was not hiding. वो छुप नहीं रहा था He was playing with the animals. और वो जो एनिमल थे जो जानवर थे उनके साथ था He was naming the animals. और वो जो जानवर उसको नाम दे रहा था He was enjoying his life. और वो बहुत खुश था अपने जीवन में। But the day when he ate the fruit,
जब उस दिन उसने वो फल खाया, fear entered, और डर उसके अंदर आ गया, and there was separation from God. और हम देखते हैं कि सेपरेशन देखते हैं परमेश्वर और आदमी के बीच में। That is why God sent His only begotten Son Jesus Christ. और इसलिए परमेश्वर ने अपना एक यीशु जो अपना पुत्र है उसको भेजा। If you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, जब आप यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकारते हो, you will reconnect with God again. और फिर आप परमेश्वर से जुड़ जाते हो। The enemy broke the relationship between you and God, और जब आपके वजह से जो शैतान ने, जो दुश्मन ने आपका रिश्ता तोड़ दिया था आपका और परमेश्वर का, Jesus is the way, the truth and the life. और परमेश्वर ही सत्य है, He will bring back to God. और वो फिर से हमको परमेश्वर के पास लेके He will आएगा, bind the relationship और फिर से वो जुड़ा था हमारा रिश्ता so उसके that you will साथ। not be separated from God the Creator. फिर से हम जो ईमानदार परमेश्वर उससे सेपरेट नहीं हो सकते। He paid a price for you and for me on the cross of और Calvary. ये आपके लिए उसने उस सूली पे चढ़ गया, That He wants to break the fear upon our life. इसलिए कि जो डर का आत्मा है तोड़ सके आपके जीवन में। Don't fear the enemy. आप अपने शत्रु से मत डरो। There is a statement in Philippians we heard. और स्टेटमेंट है, जो डर गया, आपको मालूम, जो डर गया, समाज में बोलने वाले सही में भी होगा। If you fear, you will die. अगर आप डर गए तो आप मरोगे। If you fear, you will die. अगर आप डर गए तो आप मरोगे। So you want to live or die, it is in your hand. अगर अभी ये जीवन आपके हाथ में, डर के जीना या नहीं। आपको जिंदा रहना है या मरना है, आपके हाथों में है। हाँ या ना? हाँ या ना? जो डर गया, जो डर गया, और परमेश्वर ने आपको जिंदा रखने के लिए आप उनके जीवन आपके लिए दिए। हालेलुया। So do not fear. इसलिए डरना मत, Do not fear. डर मत, Do not fear. डरो मत। He just didn't say do not fear because he said, I am with you. उसने सिर्फ नहीं कहा कि डर मत, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और डरो मत। He doesn't want you to die. वो नहीं चाहते कि आप मर जाओ, He wants you to sleep in this place वो नहीं चाहते कि आप इधर सो जाओ, so that you will rise again in the kingdom of God. कि फिर से आप उठ जाओ परमेश्वर When के people राज्य die में। in a Christian community, और जब हम देखते हैं जब जो क्रिश्चियन समाज है, जब आदमी मर जाता है, we don't tell they are dead. हम नहीं कहते कि वो मर गया है, We say they are slept in the Lord. हम कहते हैं कि वो सो गया है, परमेश्वर में सो गया People है। who sleep one day they will rise. और जब जो सोता है वो उठता है एक दिन, People who are dead they will not rise again. और जो मरता है वो कभी उठता नहीं है। Jesus was killed, buried, and he was in the tomb. और यीशु जो मर गया था और तीसरे दिन जी उठा, Only couple of days. तीसरे दिन He broke the spirit of death upon his life. और उसने यीशु ने डर का आत्मा और मृत्यु का आत्मा को तोड़ डाला, He rose again. वो जिंदा हो गया, He brought salvation, the gift of salvation for you and for me. और उद्धार उसने आपके लिए लाया, परमेश्वर का So उद्धार। don't fear इसलिए डरो मत, because you have a gift of salvation. क्योंकि आपके पास वो उद्धार का गिफ्ट है, दान है। God is not against you, God is for you. परमेश्वर आपके खिलाफ है, परमेश्वर आपके संग है और साथ है। Because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, Even before the foundations of the earth were laid, और उसने वो फाउंडेशन बनाया है आपके लिए। He gave His life for you. उसने उसका जीवन आपके लिए दिया है। He loves you unconditionally. वो आपसे बहुत प्यार करता है, किसी There is शर्त के no सिवा। other love other than God. परमेश्वर जैसा प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता। Your mother, your father, your brother, your sister, no one will love you as Jesus or God loved you. आपके माता पिता बहन भाई जितना वो नहीं प्यार करते उतना परमेश्वर आपसे प्यार करता है। Because He loves us. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, Because He is our heavenly Father. क्योंकि हम उसके पिता है, We are His children. क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। He said, उसने कहा बेटा मत डर, बेटी मत डर. Son and daughter, don't fear. जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो डरते नहीं है। I am your father. मैं आपका पिता हूँ, I am with you. मैं आपके साथ हूँ, I am with you. मैं आपके साथ हूँ, I will strengthen you. मैं आपको सामर्थ्य I will देगा, uphold you मैं आपको उठाऊंगा with my righteous right hand. और नीतिमान से दाहिने हाथ से। Genesis 15:1. और आप उत्पत्ति अपन पढ़ा दो, एक पहला का 15 वचन। Genesis 15:1. उत्पत्ति 15 पहले वचन, 15 और पहले वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और
हालेलुया। इससे बात पहले बार एडम लॉस्ट सेपरेशन द साइड ऑफ गॉड। हम देखते हैं कि जो अब्राहम है परमेश्वर से दूर हो गया था, आदम परमेश्वर से दूर हो गया था आदम। But God is restoring His covenant with Abraham. और जो करार है हम देखते हैं परमेश्वर को ठीक कर रहा है अब्राहम के साथ। He called Abraham and said, और अब्राहम से उसने बातें की, I will make you a father of many nations. और मैं आपको पूरी संतति का मैं आपको पिता बनाने वाला हूँ। There was fear in Abraham. अब्राहम के अंदर एक डर था। What kind of fear? वो कौन सा डर था He अब्राहम was को? childless. क्योंकि अब्राहम के जीवन में कोई He बच्चा was नहीं था, barren. और जो सारा को कोई बच्चा नहीं था, Still 75 years he didn't have children. और 75 वर्षों तो उसका कोई 75 इयर्स में कोई बच्चा नहीं था अब्राहम At को। the age of 75, God called Abraham and He made a covenant with Abraham. अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, एक करार किया, Now God is visiting again और फिर से परमेश्वर वापस आ रहा है अब्राहम के and calling लिए, to Abraham. और वो अब्राहम के पास आया, Fear not, Abraham. और अब्राहम को कह रहा है कि उसके I am thy shade अब मैं डरो मत, and thy exceeding great reward. मैं आपकी सुरक्षा में आपका प्रतिफल हूँ। मत डर अब्राहम, तेरा दान और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। हालेलुया। He is thy shield and exceeding great joy. मैं आपका प्रतिफल हूँ, मैं आपकी सुरक्षा हूँ, He is your reward. मैं आपका पारितोषिक हूँ। He will not reward you when you have fear in your life. अगर आपके जीवन में अगर डर है तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे सकता So है। God is willing this evening, this afternoon. और परमेश्वर इस दोपहर में तैयार है, He want to remove that fear in your life और परमेश्वर की इच्छा है कि आपके जीवन में जो बैठे जो डर है आपसे निकल जाए, and give you the spirit of faith into your life. और उसकी इच्छा है कि सामर्थ्य का आत्मा को मिले। Faith in God परमेश्वर में विश्वास will make you fruitful. और आपको फलदायी बनाएगा। Faith in God जो आपका जो विश्वास है परमेश्वर will में, make you fruitful. वही आपको फलदायी बनाने वाला है। When he came to the fig tree, और जब वो हम देखते हैं अंजीर के पेड़ के when there यहाँ, was no fruit, उस अंजीर के पेड़ में फल नहीं था, he said to the tree, और उसने उस पेड़ से कहा, from hereafter, इसके बाद no man will eat the fruit from your कोई tree. भी आदमी आपके पेड़ से फल नहीं खाएगा। Right up. और हम देखते हैं कि वो जो अंजीर का पेड़ सूख गया, Disciples were watching. और जो उसके शिष्य थे, चेले को देख Disciples रहे were थे, watching. और चेले देख रहे थे, Oh God, what happened to this और tree? ये क्या हो गया इस पेड़ को? He said, if you have faith in God, अगर आपका जो विश्वास है परमेश्वर में, if you have faith in God, अगर आपका विश्वास परमेश्वर में है, then you shall prosper. कि आप आगे बढ़ने वाले हो, You will be fruitful. आप फलदायी बनने वाले हो। He is not willing to curse you. He wants to see you fruitfulness in your life. वो आपको शाप नहीं देना चाहता है, आपको फलदायी देखना चाहता है। If you have any kind of fear in your life, और कोई भी डर है आपके जीवन में, the fear of finances, अगर जो फाइनेंस का जो फिर है, पैसों का जो डर fear of है, health, और जो अपने हेल्थ का है, जंगल का जो डर है, fear of relationships, और संबंध का जो डर है, fear of barrenness, हम देखते जो अगर जो बच्चे नहीं उसका डर है, any kind of fear, कुछ भी जो डर है आपके जीवन में, any kind of fear upon your life, कौन सा भी डर है आपके जीवन में, today, आज September 22nd, 2024, 22 सितंबर और 24 सितंबर, it will break. आज वो जो कर्ज से वो जो शाप है डर का आत्मा टूटने It वाला है, will break. वो डर टूटने वाला We है। are here to break the fear over your life through the word of God. हम यहाँ है परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आपका डर का आत्मा निकलने वाला है। मत डर, मत डर. Don't fear because I am your God. Don't fear because I am your God. डरो मत क्योंकि मैं आपका परमेश्वर आपके साथ हूँ। अगर आपके परमेश्वर आपके साथ है, इसी कारण आप इधर है। हालेलुया। आपके परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए इतना दूर आए, थोड़े देर पास में, थोड़े दूर से आए, बच्चे भी आए, स्तुति आराधना करें because you love your God. आप इतनी दूर से आए अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। If you love your God, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो, He is here to bless you. यहाँ वो है आपको आशीष देने के लिए। He is here to bless you. यहाँ है आपको आशीष देने के लिए। So today, whatever blessing God has planned for you, you shall receive your
your reward. और जो भी परमेश्वर की योजना की आज के लिए आपको आशीष देने के लिए आज आप वो स्वीकार करोगे। As a father Abraham received a reward from God, you shall receive your reward today in Pune. अब्राहम ने जैसा परमेश्वर से पारितोषिक मिला था, आशीष मिली थी, वही आशीष आपको इस पूरे शहर में मिलने वाली है। Because he is the God of Abraham, Isaac and Israel. और जो परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, He is the God of John Ezra. He is the God of Pastor Sujit. और वो पास्टर जॉन और पास्टर सुजीत का परमेश्वर है, So he will reward you exceedingly. और वो आपको आगे लेके जाने वाला है। Do not fear. आप डरो मत। Maybe you don't have a rupee in your pocket. अगर आपके जेब में पैसा नहीं है, Maybe you are in the debt bed. अगर आप बीमार हो अपने बेड पे, The resurrection power of God और वहाँ पुनरुत्थान होने वाला है, will raise you वो आपको उठाने वाला from है। every kind of debt situation. जो बड़ी हुई चीज है उसको Abraham was उठाने वाला है, afraid. क्योंकि वो परमेश्वर यहाँ है। Sarah was afraid. सारा जो उसको डर लगा था, She said, it is 90 years now. उससे सारा ने कहा कि मेरा जो एज है 98 You have है, a child in this age. मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे कैसा बच्चा मिलेगा। My husband is 99 years old. और जो मेरा जो हस्बैंड 99 उनकी जो उम्र है, He's too old to have a child. अभी वो बुढ़ा हो गया, उसको बच्चा नहीं हो सकता। Is it possible? ये नहीं हो सकता, ये क्या संभव है? There was a question mark. वहाँ क्वेश्चन मार्क था, Is it प्रश्न था possible? कि ये शक्य है कि ये Is it संभव है? possible? क्या ये संभव है? God said, और परमेश्वर ने कहा, yes, it is possible. हाँ ये संभव है, Yes, it is हाँ possible. ये संभव है, I'll give you a promised child. और मैं आपको बच्चा देने वाला हूँ। You shall laugh. और आप स्माइल करोगे, आप You will call his name Isaac. और उसका नाम आइजैक, You will call his name Isaac. उसका नाम आइजैक He रखना। is your promised child. वो आपके वो पुराने दिन का बच्चा है। I will bless his generation. मैं उसकी पीढ़ी को संतति को आशीष देने वाला हूँ। Today we are the seed of Abraham. और आज हम अब्राहम की संपत्ति हो, We are the seed of Abraham. आप अब्राहम की संतति हो। The covenant God made with Abraham. जो अब्राहम को परमेश्वर के करार And दिया था, Isaac. और आइजैक का And करार Jacob. जेकब के साथ Will करार दिया। manifest in our life today. और जो आशीष आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। And here we remind the promise that God made with Abraham. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो प्रॉमिस, जो करार वचन अब्राहम को दिया था परमेश्वर ने, I will bless you. मैं आपको आशीष देने वाला I हूँ, will bless you. और मैं आपको आशीष देने वाला I हूँ, will bless you. मैं आपको आशीष देने वाला हूँ, With everything you need, I will bless you. आपको जो भी चाहिए उसमें मैं आशीष देने वाला हूँ। खाना पीना सोना उन्हें इंतजाम कर दिया। Hallelujah. What blessing you want? आपको क्या चाहिए? कौन सा What आशीष blessing you चाहिए? want? कौन सा आशीष आपको What चाहिए? blessing you want? आपको कौन सा आशीष चाहिए? You want food? आपको खाना चाहिए? You want clothing? आपको कपड़ा चाहिए? You want shelter? आपको मकान चाहिए? You want money? आपको पैसा चाहिए? You want wisdom? आपको बुद्धि चाहिए? Whatever you want to live on this earth, आपको जो पृथ्वी में चाहिए, the provision is already done परमेश्वर ने दिया है ऑलरेडी, in the covenant, उस करार में, in the blessing. उस आशीष में। So he said, I will bless you. और परमेश्वर का आपको आशीष He दूंगा। said, Abraham, I will bless you. अब्राहम से कहा मैं आपको आशीष देने वाला हूँ, In and through you, all the families of the earth will be blessed. और मैं आपको और आपके द्वारा जितनी जगह की दुनिया की संतति है सबको मैं आशीष देने वाला हूँ। If you and I are the seed of Abraham, अगर आप और मैं अब्राहम की संतति हो, if you believe that you are the seed of Abraham, अगर आपने विश्वास किया कि हाँ मैं परमेश्वर की संतति हूँ, you will experience the blessing of Abraham in your life. और आप परमेश्वर अब्राहम की जो आशीष है आप अनुभव होंगे, You will be fruitful in every area of your life. और सब में आप फलदायी होने वाले हो, God will break the spirit of poverty upon your life. और परमेश्वर गरीब का आत्मा तोड़ने वाला है। You shall be rich so that you will be a blessing to many आप people. धनवान बनने वाले हो क्योंकि आप लोगों को आशीष देने वाले It's हो। not only finances. सिर्फ आप धन के लिए नहीं In है, every area of your life. सब एरिया के लिए Every परमेश्वर, area of your life. सब एरिया के परमेश्वर You आपको shall आशीष be देने blessed beyond measure. वाला है। और आप सोच भी नहीं सकते इतना परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। Exceeding great reward is your portion. और जो भी है आगे जाना वो आपका पोर्शन है। आप Hallelujah. हालेलुया। 1 Corinthians पहले करीब chapter 16 verse 13. पहले करीब 16 अध्याय 14 वचन। जागते रहो, परमेश्वर में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। Hallelujah. Watch ye, stand fast in the faith. Be bold like men, be strong. जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो,
पुरुषार्थ करो, बलवान हो। Hallelujah. He said, be brave and be strong. उसने कहा कि बलवान हो, पुरुषार्थ करो। Be brave, be strong बोला तो 10 जने को मारने की जरूरत नहीं है। You need not hit people. आपको लोगों को मारना नहीं है। किसको मारना है? आपको किसको मारना है? किसको मारना है? किसको मारना है आपको? किसको मारना है? Who do you want to hit? डर को। शत्रु को मारना चाहिए। शत्रु को मारना चाहिए। Hallelujah. God said, be strong so that you can fight against your enemy. परमेश्वर ने कहा कि बलवान हो, सामर्थ्यशाली हो, ताकि आप शत्रु से लड़ सकते हो। तो बच्चा भी आके गाने गाए, उसकी बच्ची जो में गाना गाया था। राइट? नया नाम परमेश्वर ने दिया। क्या नया नाम है? विजेता। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो विजेता। विजेता। फिर से बोलो विजेता। विजेता। मेरा नया नाम मेरा नया नाम विजेता। विजेता। अगर आपका नया नाम विजेता है तो डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। If your name is victory, अगर आपका नाम विजेता है, you need not fear. आपको डरना नहीं है। वो बात सिर्फ गाने में नहीं रहने का, किधर रहने का? दिल में रहने का। तुम दिल में ऐसा कैसे हर गाना गाए, डरने की गाए, फिर भी डर अपने जिंदगी में है। सिर्फ संडे के दिन गाने के लिए नहीं मत आओ। हफ्ते पूरा बगैर डर के जियो और संडे आराधना करने के लिए आओ। हालेलुया। Throughout the week, don't fear. When you come on Sunday, say, Lord, I don't fear because enemy started to steal, kill and destroy. But I come to the presence of God to praise Him and to glorify Him. पूरे सप्ताह डरो मत, मैं आज परमेश्वर की उपस्थिति में आया हूँ और मैं करने नहीं मानने वाला, मैं आराधना करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। चिपकली से डरते तो चिंताना काम करो। Right? चिपकली से डरते, छोटे-छोटे चीज से डरते, पर बोला God is with me, I will not fear. परमेश्वर मेरे साथ है और मैं डरूंगा नहीं। God is with me, I will not fear. परमेश्वर मेरे साथ है, मैं डरूंगा नहीं। बहादुर बोल देना। Who is बहादुर? नेपाली बहादुर नहीं है। आप इधर हो नेपाली आप तो बहादुर बोल देते और वॉचमैन की ड्यूटी करते रहते। You are the watchman of your life. हालेलुया। आप रक्षक अपने जीवन में। You are the watchman of your life. आप रक्षक अपने जीवन में। Then you are bahadur. Wherever you stay, you are strong, and your name is Vijeta. Your name is victory. जहाँ आप रहते हो उस जगह आपका नाम विजेता है। नाम लगाए तो कुछ नहीं होता, नाम के अनुसार रहने का है। That is the reason God said, Abraham, your name doesn't suit to become a father of many nations. अब्राहम जो नाम है उससे चुमानी है कि आप पूरे जगदीश संतान So today onwards, I will call you Abraham, so that you will become a father of many nations. और मैं आज आपका अब्राहम बनाने वाले की पूरी दुनिया की जो संतति है उसके पिता आप बनने वाले। When his name changed, जब उसका नाम बदल गया, his faith increased. और जो हम देख उसका विश्वास बढ़ गया, He started believing in God more and more. और अधिक परमेश्वर विश्वास करते गया, To the extent और इतना विश्वास किया, he is called the father of faith. और हम देखते हैं कि उसको विश्वास का पिता कहने लगे लोग। If you want to be called the father of faith, और विश्वास का पिता अगर आप चाहते हो, live like Abraham. अब्राहम की तरह उसके जीवन की तरह जियो, Live like Jesus. और यीशु की तरह जियो, Fearless. उनके जीवन में कभी डर नहीं था। अब्राहम किसी से नहीं डरा। हालेलुया। Abraham was not afraid, was not fearing for anyone. अब्राहम किसी से नहीं डरा, किसी से नहीं डरा। People came against him to fight. और जब लोग जब लड़ाई करने आए उसके खिलाफ, His servants went and fought with the enemy. उसके जो लोग थे उसके जो साथ थे उनके साथ उसने युद्ध किया, And they destroyed the enemy. और जो शत्रु सबको उसने हरा दिया, Because God was with Abraham. उसने ये किया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, Because God was with Abraham. क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के साथ था। Abraham had only servants, he did not have soldiers. और हम देखते हैं कि अब्राहम के साथ सैन्य नहीं थे, जो उसके साथ काम करने वाले लोग थे। The servants went and defeated the enemy because God was with Abraham and his household. और अब्राहम के साथ परमेश्वर का, इसलिए अब्राहम के जो नौकर थे वो जाके उन शत्रु को हराया। Proverbs 28 verse 1.
नीति सूत्र Proverbs 28. दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। Hallelujah. The wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. दूसरे लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। परंतु धर्मी लोग जवान सहित सिंहों के समान निडर रहते हैं। They are bold like a lion. वो सिंहों के तरह साहसी रहते हैं, निडर This रहते is हैं। the lion of Judah. अब देखते हैं जो लाइन, कौन जो लाइन है जुड़ा ट्राइब का। बोलना एक है, करना एक है। We say but we don't act on the lion of Judah. और हम कहते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं करते। The word of God says, परमेश्वर वचन क्या कहता the है? righteous are bold as a lion. और जो धार्मिक लोग हैं जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। Lion is called the king of the jungle. और जो हम सिंह देखते हैं वो जंगल का राजा है। Lion will not fear. और जो सिंह है किससे डरता नहीं है। Lion will not fear. सिंह किससे डरता नहीं है। So God says, if you are righteous, और परमेश्वर का धार्मिक हो there is no fear in your और life. आपके जीवन में डर नहीं चाहिए। When Adam was righteous, और जब आदाम हम देखते हो नीतिमान there was था, no fear in his life. तब उसके जीवन में डर नहीं When था। Adam and Eve were righteous, जब आदाम और हव्वा जब धार्मिक there was थे, no fear in their life. तब उनके जीवन में डर नहीं था। But when the garment of righteousness was lifted up और जब from हम the life, देखते हैं धार्मिक के जो वस्त्र निकाल गए they wear the fear of garment of fear upon them. और उसने उन्हें धार्मिक देखते हैं कि जो डर के कपड़े उन्हें पहन लिए They started hiding. और वो छुपने लगे। The same Adam और वही आदाम who named the lion और जिसने सिंह को नाम दिया था today और आज he is afraid of that lion और उस सिंह से वो डर गया because he accepted the fear of lion in his life. और उसने स्वीकार किया उस सिंह का डर का। That is why God said, इसलिए परमेश्वर ने कहा I am the lion of Judah. और मैं लाइन जुड़ा हूँ लाइन ऑफ जुड़ा I am the lion of Judah. और परमेश्वर ने कहा So I am with you. कि मैं आपके साथ हूँ So you are the king of the jungle. और आप राजा हो जंगल You के are the priest of the church. और आप चर्च के ईसाई You हो are the royal priesthood. और आप रॉयल प्रिस्ट The राजा holy nation. होली नेशन पवित्र देश You के are लोग हो peculiar. और परमेश्वर के लोग You हो are chosen. आप परमेश्वर को चुन लिया है So live like a lion. और लाइन के तरह आप रहो Live like a lion. और सिंह के तरह आप रहो Because the lion of Judah is inside you. क्योंकि लाइन जो आपके अंदर है Greater is he that is in me than he that is in the world. जो महान है जो मेरे अंदर है जो बाहर है। If you know that God is inside you, अगर आपको पता परमेश्वर के अंदर है the God in you is greater than the enemy in the world. अगर जो परमेश्वर आपके अंदर है वो महान है जो भी दुनिया में जो भी है उससे महान परमेश्वर आपके अंदर है। So you have to break that fear in your life. तो आपको उस भय को आत्मा को तोड़ना होगा। 1 Samuel chapter 16, पहले से verse 13. 33 वचन। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा पर चला गया। Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Here we see Samuel anointing David. शमूएल ने हम देखते हैं आज कि दाऊद को उसको अभिषेक किया शमूएल ने। What was that David when Samuel anointed him? और क्या हुआ जब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया? He was only a shepherd boy. और तो हम देखते हो शमूएल वाला चलवा था He was only a small boy. और एक छोटा लड़का था But God chose David और परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया and God anointed him to be king. और दाऊद को देखते उसका अभिषेक किया राजा का अभिषेक। From the day he was anointed, और उस दिन से जिस दिन से अभिषेक हो गया from the था day he was anointed, जिस दिन दाऊद का अभिषेक हुआ था there was no fear in his life.
उस दिन से उसके जीवन में डर नहीं There था। was no fear in his life. उस दिन से उसके जीवन में डर He नहीं was था। a shepherd boy. वो एक चरवा था, He was a shepherd boy. एक चरवा का He लड़का was था। taking care of the sheep. और बहुत सारे अपने भेड़िया को वो The रखता lion था। came. आज जब सिंह आया था The bear came. और जब भालू आया था They stole the sheep. और उन्होंने उसको चुरा लिया मेमने But को, David was not afraid. और दाऊद तो वो डर नहीं गया, He didn't run away. और दाऊद भाग नहीं गया, He ran against the lion. और वो सिंह के पीछे चला गया He ran against the bear. और भालू के पीछे चला गया Oh, brother lion, और उसने कहा हे ब्रदर सिंह, this is my sheep. ये मेरा मेमना है I will not allow you to steal my sheep. और मैं आपको अनुमति नहीं देता, आप इसको चुरा नहीं सकते। Oh, brother bear, और ये भालू, this is my sheep. ये मेमना मेरा है I will not allow you और मैं आपको अनुमति नहीं देता to चुरा steal my sheep. ये आप चुरा नहीं सकते I हो will kill you. और मैं आपको मार डालूंगा, I will destroy you. मैं आपको नष्ट करूंगा Because God is on my side. क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। I will not fear the lion. मैं नहीं डर सकता I will not fear the bear. मैं भालू से नहीं डरूंगा I will take care of my sheep. और मैं अपने भालू को जो भी Because I have the anointing. क्योंकि मैं जो अभिषेक मेरे ऊपर है, Because I have the anointing. क्योंकि मुझे अभिषेक किया गया है Yes, I am anointed. और कि मैं anointed हूँ, I am anointed मुझे अभिषेक किया गया है to break that fear. और मैं वो तोड़ने वाला हूँ Because God is with क्योंकि me. परमेश्वर मेरे साथ है। 1 Samuel chapter 17, पहले से मेरा जो 17 वाला verse 34 to 37. 34 से 36 We will not read this, आपको वास्तव में कहूँ, but I tell you what happened there. अब एक कहना चाहता हूँ क्या How many of you know Goliath? गोलियत किसको पता है? You know Goliath, right? कभी चर्च में कभी तो बाहर ऐसे संडे स्कूल में बातचीत हुई Goliath और दावीद के बारे में। Hallelujah. A small incident. Goliath was standing on the other side. वो गोलियत दूसरे बाजू में था He was talking all bad words against the children of Israel. और जो परमेश्वर के चुने लोग थे इस्राएल उनको वो शाप दे रहा था, करने के शब्द इस्तेमाल कर रहा था He brought fear in the eyes of Israel. और उससे बातों से उसके शब्द से इस्राएल के लोगों के अंदर डर आ गया। Goliath said, गोलियत ने कहा why we should fight? अभी ये वक्त लड़ाई का, You sit in your place. You sit in your place. आप अपने जगह बैठो, I will sit in my place. मैं अपने जगह बैठूंगा। If one person from your side come and fight against me, अगर आपसे कोई भी एक आदमी आके मुझसे झगड़ा करो, if I am defeated, अगर मैं हार गया all the Philistines will serve you. और जो फिलिस्तीन के लोग हैं आपकी सेवा करेंगे। If you are defeated, अगर मैंने आपको हराया you shall be our servants. कि आप हमारे दास बन जाओगे। Because of fear, King Saul and all the Israelites were just sitting quiet. और डर के वजह से जो इस्राएल का जो राजा था शाऊल और इस्राएल के लोग डर से बैठ गए। We know the story. हमको पता है वो स्टोरी। David came there. और दावीद वहाँ आ गया David saw the Goliath. और दावीद ने गलियत को देखा। David saw the Goliath. दावीद ने गलियत को देखा। He was not afraid. वो डरा नहीं, He was going on his way. वो अपने जगह जा रहा था He brought the tiffin box, lunch box. और वो टिफिन बॉक्स था, उसके लंच बॉक्स था उसके He साथ। gave it to his brothers. उसने अपने भाई लोगों को दिया And he was going. और वो फिर से जा रहा था। While he was going, जब वो जा रहा था he heard Goliath. उसने वो गलियत के शब्द सुने, David heard Goliath. उसने दावीद से शब्द सुने And David stood still. और वो वहां खड़ा हुआ This guy is talking against my God. और उसने कहा कि ये जो गलियत है मेरा परमेश्वर उसके खिलाफ बातचीत कर रहा है This guy is talking against my God. और ये बंदा मेरे परमेश्वर के खिलाफ बातें कर रहा I है will not accept. और मैं इसको स्वीकार नहीं करता, I will not मैं accept. स्वीकार नहीं करता। Who is this uncircumcised Philistine to speak against my God? और ये कौन आदमी है जो मेरे परमेश्वर के खिलाफ बातें कर सकता है? How old was David? दाऊद कितना साल का था? He is not a soldier. वो सैन्य नहीं था He is not a man of war. और हम देखते कि योद्धा नहीं था वो। He is just a young person. वो एक नौजवान लड़का था। He just came there to give the lunch box. वो ऐसी क्या वहाँ आया था उसको टिफिन बॉक्स अपने भाई को देना था। But when he heard the Goliath speaking against his God, लेकिन जब उसने शब्द सुने कि जो गलियत है अपने परमेश्वर के खिलाफ कह he रहा was है, unable to accept it. उसने समझ नहीं कर He सकी, was unable to accept. उसने
आप परमेश्वर के खिलाफ कुछ you should not accept. फिर आप उसको स्वीकारो मत, You don't accept. उसको स्वीकारो मत। If people talk bad about your God, अगर जब लोग आपके परमेश्वर के बारे में गलत कहते हैं, if people talk bad against your family, अगर कोई लोग आपके परिवार के खिलाफ गलत बोलते हैं, if you love your God, अगर आप परमेश्वर से प्यार if करते you हो, love your God, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो, you can raise the camera and say, who is this uncircumcised person talking against my God? दावीद के तरह से ऊंचा और कहो कि एक वैसे लोग हैं जो मेरे परमेश्वर के खिलाफ बातें कर रहे हैं। Because David loved his God to that extent. और क्योंकि दावीद परमेश्वर से प्यार करता था, I will not allow people to talk against my God and my family. और मैं किसी लोगों को परमिशन नहीं देता हूँ कि अनुमति नहीं देता कि वो लोग मेरे परमेश्वर के खिलाफ और मेरे परिवार के खिलाफ बातचीत करें। He went and struck Goliath onto the field. और वो जाके उसने गल्लत को मार डाला। How did he go? वो कैसे गया? He said, I will go and kill in the name of the Lord my God. और उसने कहा कि परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से जाता उसको मार डालता हूँ। Lord of hosts, I will go. और सेना पर यहोवा उसके नाम से जाऊंगा। The righteous run like a lion. और जो नीतिमान है, जो धार्मिक सिंह की तरफ दौड़ेंगे, They are bold like a lion. और जो उनको धन्यवाद है कि सिंह की तरफ, Because David was righteous. क्योंकि दावीद एक नीतिमान था He ran against Goliath. और वो गलियत के अगेंस्ट चला गया। Oh, very small stone. एक छोटा सा पत्थर A उसने very लिया, small stone. वो छोटा सा पत्थर था Faith in God. और उसने मारा He threw that stone in faith in God. और विश्वास से फेंका गलियत की ओर, In faith in God. और उसका विश्वास परमेश्वर में था। Bold like a lion. वो एक धन्यवाद सिंह He had की the तरफ, spirit of God inside him. और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था, He had the spirit of fear of God inside him. और जो परमेश्वर का डरता था परमेश्वर He से was था। not afraid of the enemy. लेकिन दाऊद शत्रु से नहीं डरता था, Goliath was tall and strong. और परमेश्वर ऊंचा था और स्ट्रांग है, David was just like a small baby. और दाऊद एक छोटा बच्चे जैसा था। But when David received the anointing of God upon his life, जब परमेश्वर का अभिषेक दाऊद के ऊपर आ गया, he did not fear. तब उसके अंदर डर नहीं था। He said, I will destroy you. उसने कहा कि मैं उस गलियात को मार डालूंगा। So you and I should say to the enemy, I will destroy you. और आपको और मुझे कहना है उस शत्रु को मैं आपको नष्ट करूंगा, I will destroy you. मैं आपको खत्म करूंगा, I will destroy मैं आपको you. नष्ट करूंगा। When Shadrach, Meshach and Abednego, शत्रु में अबेदनगो, they stood in the front of the statue. और जब वो उस मूर्ति के सामने खड़े रहे, They did not bow down. वो उस मूर्ति को उसके सामने नहीं They did झुके, not worship. उन्होंने उसकी आराधना नहीं If की, they don't worship, और उसने अगर आराधना नहीं करते, they'll be in the lake of fire. अगर वो उसकी वर्शिप नहीं करते, आराधना नहीं करते, तो उसके अग्नि के भट्टी में डाल देते थे। They were brought in front of the king. और उन लोगों को जो राजा थे उसके सामने लेके आए, And they said, और उन्होंने कहा, okay, हे राजा, we will not bow down. हम आपकी आराधना नहीं करेंगे, We have the fear of God in our life. क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है। We are not supposed to bow down to an idol. और परमेश्वर वचन के दौरान किसी मूर्ति के सामने नहीं He झुकेंगे। is not God. ये मूर्ति परमेश्वर नहीं है, Our God is in heaven. हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में है। We will not bow down. आप इस मूर्ति के सामने नहीं You झुकेंगे। do whatever you want. आपको जो भी करना है हमारे साथ You आप do कर whatever सकते you हैं। want. आपको जो भी करना है हमारे साथ I कर will not सकते हैं। fear. अब मैं नहीं करूंगा, We will not fear. आप डरने के वाले हैं। The God in whom we trust, और परमेश्वर पे हम विश्वास करते He हैं, will save us. और वही परमेश्वर हमको He बचा will लेगा, save us. वही परमेश्वर हमें He बचा will लेगा, save us. वो आपको बचा लेगा। If He doesn't save, अगर उसने नहीं बचाया, even then He doesn't save. अगर उसने नहीं बचाया, We will not bow down. फिर भी हम आपको नमस्ते नहीं We करेंगे। will not bow down. हम आपसे झुकने नहीं वाले We will not bow down. हम उस मूर्ति के सामने You झुकने do वाले whatever you want. और हम आराधना नहीं करने We वाले। are not afraid of you. हम राजा आपसे डरने नहीं वाले। They were thrown in the fire. और हम देखते हैं उसकी वजह से शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग के भट्टी में डाल दिया, Because they did not have fear of the enemy. क्यों? उनके अंदर शत्रु का डर नहीं था, They were not naked. और वो नग्न नहीं थे परमेश्वर के They सामने। were in the fire. वो उस अग्नि में थे, They were roaming around. और उस अग्नि में वो चल रहे थे। Who saw him? किसने देखा? Who saw? किसने देखा? King saw 4 people. और राजा ने देखा था 4 लोग। King saw 4 people. राजा ने देखा 4 लोग, He cleaned his eyes. और उसने आप बड़ी आंखें की, Again and again he seen the fire. और बार बार
दोबारा उस आग को I put 3 people in the fire. और उसने कहा कि 3 लोग डाले I see 4 members. अभी 4 लोग हैं Who is the fourth वो man? फोर्थ मैन कौन Who है is the fourth man? चौथा आदमी कौन है Who is the fourth man? चौथा आदमी कौन है The king said, और राजा ने कहा he is the son of God. और ये परमेश्वर का He is the son of God. और वो परमेश्वर का लड़का है He is the son of God. वो परमेश्वर का चुना हुआ है May that fourth man appear in your life. और मैं यही दुआ करता हूँ कि जो चौथा आदमी आज परमेश्वर आपको प्रकट करे May that fourth person be in your life. और जो चौथा आदमी आपके जीवन में आए May the son of God be with you और forever. son of God आपके जीवन में आए May that fear be broken upon your life. और जो डर का आत्मा आपके जीवन में टूट जाए Because they acknowledge God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार They किया did था not fear. वो डरे नहीं एक बार अगर प्रार्थना खरीद हो जाता ना, if once I bow down, I will not be in the fire. एक बार अगर उन्होंने कहा था कि अगर एक बार आप उस मंदिर में चूक गए तो हम आपको उस अग्नि में निकालेंगे The enemy came, Satan came और शैतान आ गया to Jesus. और यीशु के If सामने you worship only once, और शैतान ने कहा कि एक बार अगर आप मेरी आराधना I करें will give you this entire world. और मैं इस पूरे जग को आपको देने वाला हूँ Jesus said, यीशु ने कहा get lost, निकल जाओ get lost. निकल जाओ ये गाना भी गाया, हम गाना भी गाया क्या बोला लोग? ऐसे एक्शन करेगा, क्या करे? ऐसा बोला तो निकल जा, चल फुट, चल हट. किसको बोलना? हम सब परमेश्वर के लिए बोल रहे हैं, शत्रु के नहीं बोल रहे. शत्रु से बोलना, चल हट जा. Right? Jesus said, get lost. परमेश्वर ने कहा यहाँ से निकल जा Man shall not live by bread alone. और उसने कहा कि जो आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जिंदा You shall रहेगा not tempt the Lord your God. और परमेश्वर की परीक्षा मत ले You shall not tempt the Lord your God. परमेश्वर की परीक्षा मत ले God is with you. परमेश्वर आपके साथ है Do not fear. आप डरो मत What happened to Shadrach, Meshach, और Abednego? शत्रु उनके साथ क्या हुआ Not even a single hair was burned. उनके एक बाल भी नहीं जल गए Their dresses were not burned. उनके जो कपड़े थे वो नहीं जल गए They were not naked in fire. और उस अग्नि में नग्न नहीं थे Adam and Eve, और आदम और हवा they were naked in the Garden of Eden. उस जो बगीचे में वो नग्न थे Because only once they ate the fruit. एक बार उन्होंने फल खाया था Here, Shadrach, Meshach, Abednego. और यहाँ देखते शत्रु The hair was not burned. एक भी बाल नहीं जल The गया dress was not burned. उनके जो कपड़े जल नहीं गए Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ They did not have the smell of fire upon their और life. ऐसे की जो भी वो जो फायर की जो अग्नि की खुशबू भी नहीं थी They were brought outside. उनको बाहर निकाला 1 Samuel 17:45. पहले शमूएल 1 Samuel chapter 17 verse 45. दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया. सेनाओं के राजा आपके पास आए. सेना का यहोवा परमेश्वर आपके साथ है The Lord of hosts is his name. परमेश्वर आपके साथ है The strength of Philistines was in Goliath. और जो फिलिस्तीन लोग के दुश्मन थे उनका जो सामर्थ्य था वो गलियात में था The strength of Israelites were in the Lord his God. और जो इस्राएल लोगों का जो सामर्थ्य था वो परमेश्वर में था The Israelites were afraid. इस्राएल लोग डर गए थे Only one person stood there. सिर्फ एक ही आदमी खड़ा रहा He is David. और उसका नाम दाऊद है He is David. उसका नाम दाऊद है He stood and said, और वो खड़ा रहा और कहा उसने but I come in the name of the Lord my God. और उसने कहा मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ I will come in the name of the Lord my God. और मैं यहोवा के नाम से उसने कहा You come with sword, और उसने कहा तलवार से आए हो you come with spear, आप भाला से आए हो you come with militants. और आपने बहुत सेना के साथ आए हो But I come. लेकिन मैं आता हूँ I alone is enough for और you. मैं अकेला काफी आपके लिए मैं अकेला बस हूँ आपके लिए. बुला ले कितने जनों को बुला लो. लड़ाई में देखते ना कितने जनों को बुला लो. मैं अकेला काफी हूँ. क्यों? आपके अंदर सेनाओं के राजा आपके अंदर है. आप विजेता है.
Hallelujah. Your name is Vijeta. आपका नाम विजेता है, Your name is Vijeta. आपका नाम विजेता है। You have the Spirit of God inside your life. परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, You need not fear. आपको डरने की जरूरत नहीं है। Don't fear डरो मत, politicians. पॉलिटिशियन से डरो मत, Don't fear any caste, creed and religion. और आप कभी झूठे जो धार्मिक धर्म है उससे मत डरो, Don't fear about the Gentiles. और जनताई लोग जो उससे मत डरो, Don't fear your neighbor. आपके पड़ोसी से मत डरो, Love your neighbor. अपने पड़ोसी से प्यार करो, Win them with the love of और God. उनको परमेश्वर में लाओ, Pray for them. उनके लिए दुआ करो। The word of God says, pray for those who persecute you. और परमेश्वर वचन कहता है जो आपको सताता है, सताओ लाने के लिए प्रार्थना Pray करो, for your city. और आप अपने सिटी के लिए, अपने शहर के लिए प्रार्थना Pray for करो, your nation. आपके देश के लिए You प्रार्थना करो। stand as David stood. जैसा दावीद खड़ा हुआ था वैसा आपको खड़ा You have होना to चाहिए। stand like Shadrach, Meshach, Abednego. शतक वैसे आपको जैसा आपको खड़ा होना You चाहिए। have to stand like Daniel. दानियल के तरह आपको खड़ा होना चाहिए। Daniel was not supposed to pray. और दानियल को कहा कि आप दुआ नहीं कर सकते हो। He said, no matter what, even though I die, but I will not stop praying. जब दानियल को कहा था कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन दानियल ने कहा कि मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं प्रार्थना He went to करूंगा। his room. और मैं अपने हिंदू के पास चला He गया, opened the doors and windows और वो घर में चला गया और अपने दरवाजे खोल दिए, towards Jerusalem. और जेरूशलेम की तरफ उसने देखा, And he started praying. और उसने प्रार्थना की He शुरुआत started की। praying. वो प्रार्थना कर रहा था, He started praying. उसने आराधना की, People saw him. और लोगों ने उसको देखा, He was put in the lion's den. और हम देखते हैं वो सिंह के उसमें डाला गया, The lion's den. सिंह के गोद में डाला गया। God was with him. उसमें परमेश्वर उसके साथ था, In the fire, और उस अग्नि में परमेश्वर God was with him. उनके साथ था। In the fish belly, और हम देखते हैं वो जो मछली उसके पेट में परमेश्वर जोना के साथ था, God was with Jonah. परमेश्वर योना के साथ था मछली के पेट में। Moses was in the wilderness. और मूसा उस विल्डरनेस का अरण्य में था, God was with Moses. परमेश्वर उसके साथ था। You are in the land of Egypt. मिस्र देश में, God is with you. और परमेश्वर आपके साथ है। God will bring you to Canaan. और कनान प्रॉमिस लैंड वचन पर देश में परमेश्वर People को didn't come to Canaan, लोग ऐसे नहीं आए promised land, प्रॉमिस लैंड, because they had fear in their life. क्योंकि वो उनके अंदर डर था, They murmured and grumbled against God. और उन्होंने हमेशा परमेश्वर के खिलाफ बातें की। They were supposed to go from Egypt to Canaan in the promised land. और वो मिस्र देश से कनान देश में जाना चाहते थे, But all the people perished in the wilderness. लेकिन वो जो सब लोग थे उनका नाश हो गया। It is not the purpose of God that you should perish. और परमेश्वर की योजना नहीं कि आप नष्ट हो जाए, समाप्त हो It जाए, is not the plan of God that you should perish in this land. और परमेश्वर की योजना नहीं थी इस धरती पे, इस शहर में आप नष्ट हो जाओ। You shall be the head. और उसने कहा कि आप मस्तक बन जाओ, You shall be above. आपको मस्तक बन जाओ, You shall be Vijeta आप in every area of your life. सब एरिया में आप विजेता बनो। शत्रु के दृष्टि में आप बच्चे होंगे। In the eyes of the enemy you are small. In the eyes of the country you are small. In the eyes of the politicians you are small. परमेश्वर जी के नजर में आप छोटे हो, शहर के दृष्टिकोण में आप छोटे हो। क्रिश्चियंस को बहुत छोटे देखते हैं ना, लोग क्रिश्चियनों को छोटे समझते हैं, अपना परसेंटेज बहुत कम है। हम बच्चे हैं, हम एक चाकर दे तो दूसरा चाकर दिखाने वाले हैं, इसलिए कहते हैं but you should stand like David and say no matter what get lost. और दाऊद की तरह खड़ा रहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए आप निकलो यहाँ से। Those who know their God, जिनको उनको पता है उनका परमेश्वर कौन है, those who know their God, जो जानते हैं कि परमेश्वर क्या they है, will do mighty exploits. और वो बड़े-बड़े कार्य करने वाले They हैं, will do mighty वो exploits. बड़े-बड़े कार्य करने वाले They हैं, will do mighty exploits. बड़े कार्य करने वाले So हैं। if you want to do mighty exploits, आप आपको बड़े कार्य करने वाले you हो, should know your God. आपको पहचानना होगा कि परमेश्वर कौन है आपके If लिए। you know your God, अगर आप पहचानते हैं परमेश्वर you कौन will है, not fear. आप नहीं डरोगे, You will not fear the enemy. आप शत्रु से नहीं You डरोगे, will not fear the enemy. आप शत्रु से नहीं डरोगे। Any government in my nation और जब वो शहर में रहेगा will हमारे, not dictate my faith. लेकिन वो मेरा विश्वास नहीं लेके जा सकता। The just will live by faith. और विधिमान अपने विश्वास से The रहने वाला है, just shall live by faith. विधिमान विश्वास से रहने वाला है। Hallelujah. We live by faith. हम We विश्वास walk by से, faith. हम विश्वास से चलते हैं। I walk by faith.
मैं विश्वास से चलता I हूँ, walk by faith. मैं विश्वास से चलता Because हूँ, God is inside क्योंकि you. परमेश्वर मेरे अंदर है। Another 5 minutes. Luke chapter 12 verse 5. Luke chapter 12 verse 5. एक बार मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरना मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। किसी से डरना? जो आपको नरक में डालने के अधिकार है उसी से डरो, उसी से डरो। हालेलुया। Fear him who has the ability to put you into hell. उससे डरो जो घात करने के बाद जो नरक में डालने वाला है, उससे डरो। एक ही बात 2 बार लिखा उसने, बार-बार लिखा। क्या बोला? Fear him whom to fear. Fear God is what God is saying. उससे डरो जो परमेश्वर करता है कहता है। Fear God. परमेश्वर से डरो, Fear God. परमेश्वर से डरो, Because I have the ability. और उसके पास अधिकार है, I will put you in hell. और मैं आपको नरक में डाल If सकता you हूँ। live a wicked life, अगर आप दुष्ट जीवन जी रहे हो, if you live a life with fear, you will be in hell. अगर आपके अंदर डर है तो आप नरक में जाओगे। If you live in fear, अगर आप में डर है तो you will be in hell. आप नरक में जाओगे। If you fear God, अगर आप परमेश्वर से डरते you हो will be in His kingdom. और आप उसके राज्य में If रहोगे, you fear God, अगर आप परमेश्वर से डरते हो, it is a passport to be in the kingdom of God. तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके राज्य में रहोगे। When you fear God, अगर आप परमेश्वर से डरते हो, you have the gift of salvation in तो you. आपके पास उद्धार है। When you have the gift of salvation, अगर आप उद्धार आपके पास है, you have an entry in the kingdom of God. उस आपको स्वर्ग में एंट्री है, You have an entry in the kingdom of God. और आपको उसके राज्य में एंट्री है। Fire will come. Fire will come. अग्नि आएगा, Nothing will happen to कुछ you. भी नहीं होने वाला है, Floods will come. और फ्लड आने वाला है, Nothing will happen to कुछ भी you. नहीं होने वाला है, Water will come. और पानी आएगा, Nothing will happen to कुछ you. भी नहीं होने वाला है, Lions and bears will come. और भालू और सिंह आएंगे, Nothing will happen to कुछ you. भी नहीं होने वाला है, Because you are protected क्योंकि आपकी सुरक्षा की गई under है His wings. और उसके भाग से। The बेटी बोली ना Psalms 91. और Psalm 91 वो Psalms 91 मेमोरी वर्स नहीं है, आपका जीवन का संदेश है। हालेलुया। It is for your life. ये आपके जीवन के लिए है। Psalms 91 कब पढ़ते? When do we read Psalms 91? हम कब पढ़ते हैं? सोते थे कि हम केवल को जब ट्रैवलिंग करते, जब हम यात्रा करते हैं, एरोप्लेन चढ़ते, एरोप्लेन से जाते हैं, ट्रेन चढ़ते, बस चढ़ते, गाड़ी चलाते, जब पढ़ के जाते बाहर, हर दिन पढ़ो। Because the protection of God is on you for the rest of your life. परमेश्वर की सुरक्षा हमेशा के लिए आपके जीवन में ऊपर है। Under His wings, you should trust. उसके ऊपर विश्वास रखो, Under His wings, you should trust. उस पर विश्वास रखो। He will satisfy you with long life. आपको समाधान करेगा, लंबी उम्र None देगा। of you will die early. कोई भी वक्त के पहले नहीं मरने वाला है, None of you will die early. कोई भी वक्त के पहले मरने नहीं वाला The है। word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, man's life जो आदमी का जो उम्र है is 120 years. 120 साल तक है, 120 years is man's life. और 120 तक करने वाला So आदमी you है। will live for 120 years. और मैं कहता आज से घोषित है, 120 You should तक not आप die. मरोगे, आप नहीं मरोगे, You should not die. आप नहीं मरने वाले हो। No matter what, you should not die. कुछ भी हो, आप मरने नहीं वाले People हो, will try to kill you, you will not die. और आप मरने नहीं वाले हो। With sickness, you will not कोई die. बीमारी से आप मरने नहीं वाले हो। Unless and until God permits, you will not die. जब तक परमेश्वर आपको अनुमति नहीं देता, आप मरने नहीं वाले हो। May we sleep in the Lord. और हम सोने वाले हैं Because we have to rise again. जब हमको फिर से उठना है, We will visit the kingdom of God. हम फिर से हम उस राज्य The को same praise and worship what we have done here और आज जैसे हमने आराधना और उपासना की है, for the rest of our life, पूरी जीवन हम forever and ever, हमेशा के लिए we will praise Him. और उस समय हमेशा उसकी स्तुति We will करेंगे, worship Him. हम उसकी आराधना करेंगे। Today we worship in the presence of God. और आज परमेश्वर की उपस्थिति में हमने आराधना की। On that day, उस दिन we will worship with God. और हम परमेश्वर के साथ आराधना We करेंगे, will worship with God. और हम परमेश्वर के साथ We will आराधना worship God परमेश्वर की हम आराधना and करेंगे, with God. और परमेश्वर के His साथ angelic force. और दूत के साथ We will worship Him. हम
परमेश्वर की आराधना That करेंगे is our destination. और यही हमारा डेस्टिनेशन, वही हमारी Don't जगह worry है। about your government. और हम यहाँ मत चिंता मत करो Don't worry if you have white ration card or pink ration card. और ये मत करो कि राशन कार्ड, ग्रीन कार्ड है, व्हाइट कार्ड, इसकी चिंता मत करो। Ration card is not your portion. राशन कार्ड आपका हिस्सा नहीं है The word of God is your ration card. और परमेश्वर का वचन आपका राशन कार्ड वो हिस्सा है आपका। God is your provider. परमेश्वर आपको प्रोवाइड करने वाला है। Jehovah Jireh is your और provider. यहोवा जाएगा, परमेश्वर आपको देने वाला He है। will provide everything. परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। सेफ्टी पिन लगा देना ना, सेफ्टी पिन से सारा जो भी है वो आपको देने वाला है। हालेलुया। From very small thing to the biggest thing, if you have a desire, God is willing to fulfill it. और छोटी बात से बड़ी बात अगर आपकी इच्छा है तो परमेश्वर वो पूरी करने वाला If you है। have a desire in your life, अगर वो जो इच्छा आपके जीवन में don't have fear in your heart. और डर मत करो, Have a desire in your heart. आपके हृदय में डर नहीं चाहिए, I आपके will हृदय में win इच्छा souls. चाहिए। I will win souls. मैं बहुत सारे आत्मा जीतने वाला हूँ। I will bring people to the और church. जो लोगों को चर्च में लाने वाला I will हूँ, bring people to the church. जो लोगों को चर्च में लाने I वाला will हूँ, go and share the word of God. और मैं बाहर जाके परमेश्वर का वचन I will देने be a वाला हूँ। blessing. और मैं उन लोगों को आशीष I will be a blessing. और मैं उनको आशीष I बनाने will be a वाला हूँ। blessing. और मैं उनके लिए आशीष बनने वाला हूँ। Why did we come to Pune from Hyderabad? हम हैदराबाद से पुणे क्यों आए हैं? हमारा खुद का चर्च है. उनके पास उनका चर्च है, We have people. उनके पास उनके लोग हैं। But why did we come? वो क्यों आए? We came to share the word of God. और हम यहाँ की परमेश्वर का वचन आपसे बात करें। We have not come for money. और हम पैसे के लिए नहीं आए हैं, We did not come for any gift. हम किसी गिफ्ट के लिए नहीं आए We हैं came on our own. और हम खुद अपने पैसे से आए हैं We came to sow the word of God into your और life. हम वो वचन का बीज बोलना चाहते हैं आपके जीवन में। And I believe और मेरा विश्वास है from today onwards, आज के दिन से if you have any kind of fear, और कोई भी डर है आपके जीवन में remember God. और हमेशा परमेश्वर याद करो, Remember His word. उसके शब्द को याद करो Forget me. और उसके वचन को याद करो Remember God and remember His word. और परमेश्वर और उस परमेश्वर के वचन को याद करो। I may come, I may go. मैं आऊंगा और जाऊंगा, Heaven and earth will pass away. ये पृथ्वी और ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। Heaven and earth will pass ये away. पृथ्वी और ये दुनिया नष्ट हो But जाएगी not His word. और परमेश्वर का वचन कभी नष्ट But नहीं not होगा। His word. परमेश्वर का नष्ट नहीं होगा। Ask me 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy. उसे तिमोथी क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। Hallelujah. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है May this spirit live upon your life. और ये आत्मा आपके ऊपर आए, सामर्थ्य की आत्मा आपके ऊपर आए Power of love, और प्यार का सामर्थ्य power of sound mind, और संयम and fear of God upon your life. और परमेश्वर का भय का आत्मा आपके ऊपर He आए did not give you the spirit of fear. और उन्होंने भय का आत्मा आपको दिया नहीं है। जो परमेश्वर आपको नहीं दिया, क्यों आप लेना चाहते हैं? When God has not given you the spirit of fear, why do you want to take that spirit into your life? अगर परमेश्वर ने आपको भय का डर का आत्मा नहीं दिया तो आप खुद होके वो डर का भय का आत्मा क्यों लेना चाहते हो? In the Garden of Eden, और ईडन गार्डन बगीचे में God said, "Don't eat this fruit. This is not for you." और परमेश्वर ने कहा ये फल मत खाओ, ये फल आपके लिए नहीं है What was not given for them, और परमेश्वर फल उनको लिए नहीं दिया था they ate and they fell. और उन्होंने खाया और पाप में गिर So गए। don't eat what doesn't belong to you. और वो मत खाओ जो आपका नहीं है Don't eat what is not given to you. और जो आपको दिया है वो खाओ Don't receive what is not given to you. और जो उसको ग्रहण मत करो जो आपको दिया नहीं है Take the spirit of power which is given to you. और जो परमेश्वर का सामर्थ्य का आत्मा दिया उसको लो Spirit of love, और जो प्रेम का आत्मा को लो spirit of peace. और जो शांति का आत्मा आपको दिया है The fruit of the spirit you are supposed to eat. और जो आत्मा का जो फल है वो आपको खाना है The fruit which was eaten in the Garden of Eden, और जो फल एडन गार्डन में खाया गया था disconnected, और वो परमेश्वर से वो जुदा हो गए disconnected man from God. और आदमी और परमेश्वर से जुदा हो गए Today God has given us और परमेश्वर आज हमें दिया है the fruit of the spirit. कोई आत्मा का फल दिया है The fruit of the spirit. और कोई आत्मा का फल हमें दिया है Eat खाओ and live. और रहो You will not die.
आप नहीं मरने वाले Eat हो। the fruit of the Spirit. और कोई आत्मा के फल खाओ। Eat the fruit of the Spirit. और कोई आत्मा के फल You खाओ। will not die. आप मरने नहीं वाले हो। May you live for 120 years. और आप 120 तक जियो। 120 by 80 को तो मालूम है आपको। What is 120 by 80? 120 और 80। 120 by 80 बीबी चेक कर लेते ना। 120 by 80 बोले क्या है मेडिकल फील्ड में जब बीबी चेक करते ना शुगर और बीपी चेक करते लोग बोलते 80 रहना 120 by 80 जब आप तंदुरुस्त है राइट यू शुड लिव मोर देन 80 एंड अप टू 120 हालेलुया 80 तक और 120 तक आप जियो। वो साल्स में लिखा है चैप्टर 90 में 90 years होगा वो मत मानो कि 120 मैं जीऊंगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। डाउट है आपको जिसको डाउट है वो नहीं जीने वाला इससे पहले बोलो इफ यू हैव फियर यू विल नॉट लिव इफ यू से आई विल नॉट फियर सिकनेस डिसीज malfunction is not my portion I will live long I will live so because God said in his word और कि परमेश्वर का वचन कहता है कि 120 की उम्र तक आप जियो। अगर आप में शंका है और डाउट है कि बीमारी से मैं मरने वाला हूँ तो आप मरोगे। may you live to see your children's children और मैं यही दुआ करता हूँ कि आपके जो बच्चों के बच्चे आप देख सको। may you live to see your children's children आपके बच्चों के बच्चे आप देख सको। long life is your portion और लंबी आयु आपका हिस्सा है। long life is your portion लंबी आयु आपका हिस्सा है। long life is your portion लंबी आयु आपका हिस्सा है। don't die young और आप नौजवान में मत मरो। eat the fruit of the spirit and live और कोई आत्मा का फल खाओ और रहो। eat the fruit of the spirit और कोई आत्मा का फल खाओ। you are in the garden of God और आप परमेश्वर के बगीचे में हो। God is asking you eat the fruit of the spirit और परमेश्वर कह रहा है बोल रहा है कि कोई you आत्मा stretch फल your खाओ। hand and pluck and eat the तो fruit of अपने the हाथ को spirit बढ़ाओ और पवित्र आत्मा फल खाओ। the fruit of the spirit is in the word of God और पवित्र आत्मा का जो फल है वो उसके वचन में eat and live और खाओ और जगो। eat and live खाओ और जगो। eat and live खाओ और जगो। last one was Psalms 118 verse 6 सोदर एक शब्द we just read and close Psalms 118 यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया फिर से पढ़ो सिस्टर यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया यहोवा मेरे और है मैं ना डरूंगा मनुष्य मेरे क्या कर सकता है हालेलुया God is the Lord is on my side I will not fear what can man do unto me यहोवा मेरी ओर है मैं न डरूंगा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। David is standing in front of Goliath और दावीद को गदर के सामने खड़ा and है is saying और वो कह रहा है the Lord is on my side Goliath गदर परमेश्वर मेरे साथ I है। will not fear Goliath मैं आपसे डरूंगा नहीं। what can Goliath do to me आप कुछ भी कर सकते मेरे साथ। तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता हालेलुया कोई बोलते ना क्या बिगाड़ता था क्या बिगाड़ता शरीर बिगाड़ता कपड़े बिगाड़ता तो जाकर मरता कुछ नहीं कर सकता आपका प्राण ले सकता मगर आपका प्राण किसके हाथ में परमेश्वर के हाथ में उससे डरो माइंड जस्ट यूज चेक से आई विल नॉट फियर आज से कहो कि मैं नहीं डरने वाला हूँ। डरूंगा ना डरूंगा आपके मुंह में डरूंगा नहीं और आपके मुंह में लाइफ एंड डेथ आर इन द पावर ऑफ द टंग जीवन और मौत आपके मुंह में है। Life and death are in the power of the tongue. और जो जीवन और जो मरण है Speak life, जीवन speak बोलो life, speak life, जीवन बोलो eat the fruit और उसका फल खाओ and live for 120 और years. 120 तक जियो। How many say yes and amen? परमेश्वर का यह वचन यह सलाम है। Yes and amen कितने जने बोलेंगे? 120 साल किसको जीना है? किसको जीना है 120 साल? परमेश्वर अगर लेट करा तो हम रहेंगे, जल्दी आ गए तो परमेश्वर के साथ हम जाएंगे। ट्रेन आने वाला है प्लेटफॉर्म पे, जल्दी या देर से आप इंतजार करना। हालेलुया। If you are not ready on the platform, the 10 virgins are there. 5 are ready and 5 are not ready. 10 कुंवारी में 5 कुंवारी और तैयार थी और 5 कुंवारी तैयार नहीं थी। The 5 people said,
सवारी ने कहा कि उनको देर होने वाली है, चलो हम चलते कुछ कर लेते हैं। When they went, और वो जब वो चले गए God came. और परमेश्वर आ गया The bridegroom came. और जो ब्राइड आ गया People who were ready, और जो लोग तैयार थे, people who were ready, जो लोग तैयार थे, people who were ready, लोग जो तैयार थे they were inside. और वो अंदर चले गए। After that, और उसके बाद they came. और जो दूसरे लोग Who were आए not ready. जो तैयार नहीं थे, अरे ट्रेन आगे चले गया, अरे ट्रेन आ गया तो चले गया, ट्रेन की दरवाजा बंद हो गई। खटखटाओ, open the door, ये दरवाजा खोलो, open the door, दरवाजा खोलो, PC, open the door। इसे आ गया दरवाजा खोलो। अरे भाई आपको मैं नहीं पहचानता, भाई मेरे पास टिकट है, टिकट एक्सपायर हो गया, भाई मेरे पास टिकट है, 5 मिनट के लिए बाहर गया, चाय पान पीने के लिए गया, देर हो गया, इट इज डिलेड, देर हो गया। when I came, जब मैं आया, you are not ready, जब आप तैयार नहीं थे, get lost, अभी दूर चले जाओ, get lost, अब दूर चले जाओ, तो get lost तुम सुनने वाले नहीं है, वो दूर चले जाओ, हम सुनने नहीं वाले हो। शत्रु सुनने वाला है, you should say and say, get lost away from my life, और आपको कहना है शत्रु को कि आज निकल जाओ मेरे जीवन से। I will live long, I will live long, और मैं दीर्घ आयु जीने वाला I will हूँ, live strong, मैं सामर्थ्यशाली बनने वाला I will हूँ, live और मैं सीखने वाला हूँ, to declare the wonderful works of God. और मैं सीखूंगा कि परमेश्वर का जो वचन घोषित So करने this वाला हूँ। afternoon as we heard the word of God, आज ये दोपहर के समय हमने परमेश्वर का we वचन break the सुना, spirit of fear over Pune, और हमेशा याद रखना है, इस शहर में जो डर का है, उसको तोड़ डालो। over Maharashtra, और महाराष्ट्र में over this place. और जा यहाँ इस जगह पर तोड़ डालो उसको। May the spirit of God rest in this church. और ये परमेश्वर आत्मा इस जगह रहे, May the spirit of God rest in individual's life. और परमेश्वर का जो वचन आपके वैयक्तिक जीवन में रहे, Be bold like a lion. और जो धर्मी लोग इस सिंह Be की bold तरह- like a lion. और जो धर्मी लोग सिंह की तरह Be साझा bold like a करते हैं, lion. धर्मी लोग सिंह के साथ And may you live for 120 years और without fear. 120 साल तक जीऊंगा, डरूंगा नहीं। Without fear, you should live for 120 years. डर के बिना आप 120 साल जीने I वाले will come हो। again. और मैं फिर वापस We आऊंगा, will celebrate the goodness of God. और हम एक साथ परमेश्वर की We अच्छाई will celebrate the goodness of God. और परमेश्वर के अच्छे भले को देखने वाले। This hall will be overflowing. हमें ये जो हॉल है लोगों से भरने वाला है, You will come और जब मैं फिर से वापस आऊंगा, because you go and break the fear over the life क्योंकि हमने उस दुष्ट आत्मा को जो फियर का आत्मा को तोड़ डाला है, and you bring them to the church. और वो जो लोग हैं उनको आप सोच में लाने वाले They will हैं, be planted in this place और ये उसको प्लान करने and वाले we हैं, will grow. और ट्री के समान वो We बनने will वाला है, grow. और ट्री के We समान will grow. बनने वाला है, We will grow. और पेड़ के समान बनने And we वाला will है, bring Maharashtra for the और kingdom आप of God. महाराष्ट्र को जीतने वाले हैं, Maharashtra belongs to God. और महाराष्ट्र परमेश्वर के लिए, Maharashtra belongs to God. आपका महाराष्ट्र परमेश्वर का You हिस्सा are है, the child of God. और आप परमेश्वर की संतान हो, People will see और परमेश्वर आपको देखेंगे, God in you. और वो देखेंगे People परमेश्वर will को। see और परमेश्वर लोग देखेंगे God in you. आप परमेश्वर आपके अंदर They will है, come to you. और लोग आपके पास And they will आएंगे say, और वो बोलेंगे, We see God in you. और वो कहेंगे कि परमेश्वर Take us आपके to अंदर है, church. और हमको चर्च लेके जाओ, Introduce God in our और life. हमको परमेश्वर की पहचान करो, Pray for us. हमारे लिए प्रार्थना करो, Bless us. हमको आशीष दो, Help us. हमको मदद करो। Maharashtra belongs to the church. और ये महाराष्ट्र चर्च का हिस्सा है, The body of Christ. और ये परमेश्वर का हिस्सा है। Arise and shine. खड़े हो जाओ और चमको, The glory of the Lord has come. परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ है, The glory of the Lord has come upon you. परमेश्वर का गौरव The और महिमा Lord होती is है। with me. परमेश्वर मेरे साथ है, I will not fear. मैं डरूंगा नहीं। What can man do unto me? मनुष्य मेरा क्या करेगा, What can man do unto me? मनुष्य क्या करने वाला मेरा, मत डर, मत डर। मैं ना डरूंगा। बोलो मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मनुष्य क्या कर सकता है? बोलो मनुष्य क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ मेरे परमेश्वर है। मेरा खुदा मेरे पास है।
bless you. May you live for 120 years. Amen. Thank you, Pastor. वचन था आपके लिए मैंने कहा था ना कि आप लोगों को बोलो कि आज का परमेश्वर वचन आपका जीवन में परिवर्तन लाने वाला है और मैं विश्वास